All right, everyone. The speaker is here. I welcome Anjali D. Thank you for giving the time. So, firstly, I would love to introduce you to the team and to all the students. So Anjali D is comes in one of the top 1% mentors on TopMe. She currently has 1 million plus impressions on LinkedIn, and she's passionate about advancing her valuable expertise in marketing and HR department. She is driven by her passion for teaching, and she's currently a full-time assistant professor at IIT Madras. She has interned at many prestigious organizations like Godrej Properties and India Lost and Found. So, Anjali Di, we would firstly love to know about your journey from your end as well, from the very beginning. So, if you can go to it. Sure, yeah. Thank you so much, Yukta. This is my first session, and I'm sorry I'm taking it from a car. I actually planned it way ahead, and this trip was unexpected, so I had to join. I hope I'm audible, right? Yes, you are audible. Yeah. All right. So, hello everyone. My name is Anjali Mehta, and as Yukta has already introduced me, I've done my UG from SRCC and my post graduation from Delhi School of Economics. Post which I qualified my UGC in GRF, which is the basic qualification for becoming an assistant professor, and then I started teaching. So, I always wanted to get into academia because my maternal family, everybody is into teaching, yeah, school teaching. So from there I just had some inclination towards teaching, and then maybe it just materialized later on that I had to get into this only. Also because I think I was helped by a lot of teachers, so therefore I was always intrigued by what their life would look like, and I would always imagine how they would go about things and how are they able to guide so many people so into this way. uh, was I determined to get into SRCC? Always no. So my father, he wanted me to become a doctor, right? So till 10th, I was scoring decently well. I had 10 CGPA in 10th, and then I had to decide which course I would take, right? So my father, he always thought that I would become a doctor because I have consistently good grades, and I'll take medical, but I didn't because I don't know, I was just very scared of physics and chemistry. So I decided that I wouldn't, opt for subjects that I'm so scared of because I won't be able to perform anyways. इतना डरोगे आप किसी चीज से तो नहीं कर पाओगे. So I opted for commerce, and उसके बाद ही सेड कि ठीक है कॉमर्स ले रहे हो तो गेट इनटू अ गुड कॉलेज, बिकॉज अदरवाइज आप जहां से करोगे ना इतना वैल्यू नहीं होता है. Not everybody gets into a good company or maybe gets a good profile बाकी colleges से. So then he introduced me to SRCC. वो उनका सपना था फिर कि ठीक है डॉक्टर नहीं तो SRCC जाओ या फिर ना अच्छे tier 1 कॉलेज में जाओ. And because I was from गुड़गांव only, so DU पास में भी था, so थोड़ा strategically भी ऑप्शन मेरे लिए बेटर था. SRCC के बाद में everybody is sitting for placements because SRCC is known for good placements. आप UG के time ही they are getting good packages. So I also thought that I'll sit for placements, but I did not by the time I reached my final year because maybe I was not very interested into the corporate thing. I was never ऐसा सपना नहीं था कि ठीक है हाई राइज बिल्डिंग्स में जाना है और काम करना है 9 to 5 और इतना पूरा टाइम इन्वॉल्व रहना है किसी चीज में. सो इसलिए वो मैंने ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दिया. फिर ये था कि ठीक है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर दो बिकॉज एकेडमिक्स अच्छा है. सो एवरीबडी सजेस्ट्स यू, ऑल द रिलेटिव्स एंड एवरीबडी, कि ठीक है कुछ ये एग्जाम दे दो. बट बिकॉज दीज एग्जाम्स आर ऑल्सो वेरी रिस्की. आपके पास में ना श्योरिटी नहीं होती है दैट यू विल क्रैक देम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, और इसके बाद में बहुत टाइम वेस्ट होता है. सो आई एनरोल्ड इन टू अ PG प्रोग्राम. आई डिड मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इटसेल्फ. ओके, 21 में SRCC से ग्रेजुएशन. आफ्टर दैट MCOM किया, 23 में वो हो गया. एंड बाय December 23 आई क्वालिफाइड UGC नेट GRF. फिर वो क्वालिफाई होने के बाद में आई रोट वन रिसर्च पेपर विद फैकल्टी, and now I'm applying for a PhD in marketing. And by the time I get enrolled myself into a PhD, I thought I should get some experience, so I actually know if I want to do it full time or not. मैं इतना justify भी कर पाऊंगी नहीं एक professor के role को. So that is what I'm doing currently. And yeah, anything else that you would want me to add?
Andy, first of all, it's like very motivational to hear all of it as you carried forward your father's dream. So, and secondly, I really forgot it at the beginning, but a big thanks to you that you actually said yes for the session because from the morning we were just having this conversation. Okay, maybe we have to cancel the session because of your traveling, but at the end she said yes, and your determination is all the motivation we have right now to be in the session. So thank you so much. And yeah, I think we can go on the main question then. Yeah, thank you, Yukta. Actually, so also, why did I join LinkedIn? So I joined it I was on LinkedIn for over a year, but I started posting in September, somewhere around September. The only reason was because while I was going through this journey of getting into an assistant professor role and enrollment into a PhD, what I saw is everybody जो भी कर रहा है ना पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद भी नेट दे दिया ठीक है आप आगे क्या करने वाले हो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनोगे पीएचडी कैसे होगा या फिर इन जनरल यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई आउटलाइन नहीं था किसी का कि अच्छा ठीक है इस रोल में किसी को जाना है तो वो कैसे जाएगा किससे बात करनी पड़ेगी कौन से प्रोफेसर से बात करनी है कौन सा फील्ड चूज करना है आपको अगर पीएचडी करनी है तो कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे ये सब ना इन्फॉर्मेशन नहीं था सो आई गॉट इनटू लिंक्डइन एंड स्टार्टेड पोस्टिंग की ठीक है अगर सिमिलर व्यू पॉइंट किसी और का भी है तो थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए बिकॉज आई ऑल्सो वॉज गोइंग थ्रू ट्रबलसम टाइम नहीं पता चलता है आप किस में स्पेशलाइज करोगे बिकॉज आई हैड मार्केटिंग एंड एचआर और फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर मुझे लगा कि फाइनेंस में शायद पीएचडी भी मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उसके अंदर सो आई माइट नॉट बी एबल टू गो थ्रू इट सो फिर मार्केटिंग चूज किया उससे पहले ओबी भी मैंने एक्सप्लोर किया सो ओबी के लिए आई अप्लाइड इन IIM इंदौर वो शॉर्ट लिस्ट भी हो गया बट देन I don't know. I did not go for the interviews because OBB somewhere जब मैं पढ़ रही थी उसके पेपर्स वगैरह सो इट डिड नॉट रियली एक्साइट मी फिर मैंने मार्केटिंग का स्टार्ट किया पढ़ना और उसका वो पेपर भी लिख दिया और फिर थोड़ा सा मार्केटिंग में एनीवेज इट इज वेरी ग्रोइंग ना मार्केटिंग का फील्ड सो आई थॉट या मे बी आई कैन डू मार्केटिंग बिकॉज it is always changing also right marketing is not something which is static organizational behavior is something which can stagnate after a point of time right सो मार्केटिंग इन्वॉल्व होता रहेगा मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा उसके अंदर नई नई चीजें आएंगी सो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन टू लर्निंग न्यू थिंग्स सो इसलिए लिंक्डइन भी स्टार्ट किया सो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सेशन एंड कनेक्टिंग विद पीपल हु आर maybe wanting to get into this line or have some other confusions that they might want somebody from the senior faculty to solve yeah so thank you for the session actually thank you Krishna for cooperating yeah Thank No. you, Dee. yeah It really does feel so motivating. So, like as you talked about your journey in SRCC, then in DSC. So, what lessons like from SRCC and DSC should students carry forward in their careers? Because as you said, that there is a very much dilemma going on. What career path one should actually choose? mm-hmm. So, I think what I went through during my SRCC and DSC days is uh, whether I should go into corporate or not. So, both the colleges, they allow you to try different things. ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस ही लेने हैं और फिर वहीं पे बैठे रहना है मोनोटोनस लेक्चर्स लेकर के वही थियोरेटिकल चीजें पढ़ोगे वो प्रैक्टिकल भी उतना ही इन्वॉल्व करते हैं दे गेट यू एनरोल्ड इनटू सोसाइटीज सारे के सारे प्रोफेसर्स ना प्रमोट करते हैं कि आप सोसाइटी में जाओ कुछ काम करो सीखो कॉलिंग कैसे करते हैं तो सेल्स वाला भी थोड़ा आप रोल कर सकते हो देन फेस्ट आ रहा है तो मार्केटिंग भी आप देख रहे होते हो फाइनेंसेस मैनेज कर रहे होते हो सबकी सब चीजें आप मैनेज कर रहे होते हो सो वो आपको बहुत सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देता है ताकि आप थोड़ा सा देख पाओ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा है एंड फॉर्म योर चॉइसेस बेस्ड ऑन दैट डिपार्टमेंट और मेरा SRCC 1.5 years I think it was offline 1.5 it was online so online वाला I think it was disadvantages for my people because वो कनेक्टिविटी जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स वाला चीज
क्योंकि इनिशियली 1.5 years में तो यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, योर फ्रेंड्स. उसके बाद 1.5 साल में व्हेन यू हैव ऑलरेडी एनालाइज, फिर आप काम करना स्टार्ट करते हो कि ठीक है मुझे इस तरफ जाना है. सो वो आई थिंक वो रह जाता है अगर आप ऑनलाइन चीज में रहते हो. डिपार्टमेंट से अगेन, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं. अब बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू एकेडमिया, सो मेरे को वैसा एटमॉस्फेयर मिल गया. कॉर्पोरेट के लिए भी दे ऑल्सो हैव सोसाइटीज एक्सेट्रा, एंड इतने सारे फेस्ट हैं, बहुत सारे टॉक्स होते रहते हैं. सो बहुत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके ना कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे. हर फील्ड से लोग आ रहे हैं आपको गाइड करने के लिए. सो वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको. सो वो आई थिंक मैंने सीखा कि अडेप्टेबिलिटी हर चीज के अंदर जो भी आपको ट्राई करनी है, और रिस्क लेना है कि ठीक है अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो आप. सो वो मैं बोलूंगी मैंने सीखा. All right, this one thing is Yeah. trying different roles. But then Yeah. another problem that students do face is about professional courses. Like in BCom, people do have choice of MCom, MBA, CA, CFA. So how should a student approach these career paths? Okay, so so I did BCom honors, then I had technically choices that people would think is SRCC के बाद में MBA करेगा किसी IIM से, और फिर जॉब लेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, एंड देन करियर सेट करेगा. सो वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो सब लोग आपको बता रहे होते हैं, बट आई थिंक एक पर्सनल कॉलिंग भी होता है ना कि आपको कहाँ पे जाना है. अगर कॉर्पोरेट में जा रहे हो, इट इज वेरी डिमांडिंग. क्या आप उतने आवर्स कॉर्पोरेट में देना चाह रहे हो? व्हाट डू यू प्रायोरिटाइज? क्या आप लोगों से इतना कनेक्ट करना चाह रहे हो, कॉन्टैक्ट्स, कॉलिंग्स एंड एवरीबडी, ये नेटवर्किंग, क्या आपको वो एक्साइट करता है नहीं करता है? वो डिपेंड करता है. ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर आप वो कैंसिल आउट कर दोगे. ठीक है, शायद MBA नहीं करना है बिकॉज MBA में बहुत ज्यादा नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस होता है. देन यू वुड गो फॉर MCom. MCom से क्या होगा? आइदर यू विल, जो ज्यादातर लोग MCom कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, या फिर उनको एकेडमिया में ही आना होता है. सो वो आपका फिर इंटरेस्ट कहाँ पे है? आपको क्या एक सेटल्ड जॉब चाहिए है जो कि एक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रहा है? तो आप फिर MCom कर लो बैकअप के लिए, सो दैट इफ यू नॉट एबल टू क्रैक योर गवर्नमेंट एग्जाम, देन यू हैव अ बैकअप की ठीक है इसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी, बिकॉज MCom के बाद भी प्लेसमेंट होता है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द विजन. सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आप बोल रहे हो, CFA, CA एक्सेट्रा, वो आप कर सकते हो जब आपको मतलब बहुत एम्बिशियस हो और बहुत जल्दी जल्दी आपको कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना है. ठीक है, सो इन सब कोर्सेज से ना बहुत आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है. सो वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं. लोग CFA वगैरह अपना फर्स्ट जॉब के टाइम भी कर रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रमोशंस में हेल्प होता है. आप जितना ज्यादा क्वालिफिकेशंस होगा, प्रमोशंस में भी हेल्प हो रहा है. सो इसलिए वो आपका टोटल डिपेंड करता है कि करियर कैसा चाह रहे हो आप, कितनी जल्दी मूवमेंट चाह रहे हो, कितना एफर्ट आप लगा सकते हो, टाइम है कि नहीं है, उस चीज पर डिपेंड करता है. All right, thank you, Dee. One other thing that students generally get through many like very particular specializations that are there in their career. If we talk about particularly in finance, it offers career in investment banking, risk management, and analysis. Can you just highlight these particular roles for the students out here? फाइनेंस का इन जनरल जो मैंने ऑब्जर्व किया है आफ्टर माय UG, PG एंड ऑल्सो माय वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और लिंक्डइन पे भी, फाइनेंस बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है. ठीक है, आप फाइनेंस के अंदर कुछ भी कर रहे हो ना, सो हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. सो अगर आप लिंक्डइन पे क्रिएटर भी हो ना, फाइनेंस क्रिएटर्स को ज्यादा पे आउट मिलता है. ठीक है, सो फाइनेंस एनीवेज इज अ वेरी वेल पेइंग थिंग. उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट वाला चीज है. सो अगेन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम किस चीज में देना चाह रहे हो. IB के अंदर क्या हो रहा है कि आप कोई भी एंटिटी है ना, उसके फाइनेंसेस को देख रहे हो. यू आर टेकिंग देयर डिसीजंस, कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको रिटर्न आने वाला है, वो आप मेजर करके करने वाले हो. ठीक है, रिस्क में भी सेम चीज है, बट इन्वेस्टमेंट में जो है आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे होते हो. ठीक है, और हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे होते हो. ठीक है, रिस्क में आप पेपर्स वगैरह देख रहे होते हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस कैसे हैं. ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं. सो अगेन फाइनेंस का मैं इतना हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई डिड नॉट हैव फाइनेंस ड्यूरिंग माय मास्टर्स. मेरा मेजर HR मार्केटिंग था, सो मेरे को उसका थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा.
Di, I have a Hi. question from you. Hello, Di. I have a question from Anji, you. hi. जैसे I also think about कि of being a professor, but the career path is not clear. So could you clarify कि career path है क्या professor? Because some people say PhD is mandatory, and some people say कि not PhD is mandatory, UGC नेट से भी हो जाएगा. तो could you clarify that path? हाँ, sure. So, UGC NET is the basic requirement for being eligible to apply anywhere for a assistant professor role. ठीक है. Now, some colleges they want you to have a PhD also. This is particularly the case of private colleges. जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आप PhD लेकर आओगे, नेट का सर्टिफिकेट तो बहुत बेसिक है, ठीक है. अगर आपको किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर रोल के लिए अप्लाई करना है, सो यूजीसी नेट होना चाहिए. गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप जैसे ड्यू का मैं एग्जांपल दूंगी, यूजीसी नेट हो गया, देन यू हैव एनरोलमेंट फॉर ड्यू का एडहॉक पैनल, ठीक है. उसके अंदर आप एनरोल कर लोगे, देन जो भी वैकेंसी आएगी ड्यू में गेस्ट लेक्चरर की, आप अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, इंटरव्यू होगा, यू गेट सेलेक्टेड, हो गया ड्यू का गेस्ट प्रोफेसर के लिए. फॉर परमानेंट पोजीशंस आल्सो द प्रोसीजर इज द सेम. यू रजिस्टर्ड विद द ड्यू पैनल, ठीक है. उसके बाद में हर कॉलेज अपना अपना वैकेंसी निकालता है, उसके लिए यू अप्लाई, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू यू गेट सेलेक्टेड और वो प्रोसेस खत्म हो गया है, ठीक है. नाउ आफ्टर यू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन गेट योर पीएचडी डिग्री. वहां पे पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, बट एपीआई स्कोर होता है, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. सो इस एपीआई स्कोर के अंदर आपको 30 मार्क्स मिलते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है. सो 100 मार्क्स में से आपको अलॉट हो रहे हैं, 25 इज फॉर योर यूजी, 15 marks is for your PG, and 10 marks is for if you have UGC NET with GRF. If you have just UGC NET, you get 7 marks, 30 marks आपका PhD से है. So अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक जॉब के लिए और 100 में से आपका कैलकुलेट हो रहा है स्कोर, जिसके पास में PhD है, ठीक है, उसको 30 नंबर आपसे ज्यादा मिल रहे हैं. सो ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा वो कर पाएंगे, स्कोर उनका ज्यादा हो पाएगा, ठीक है. तो वो ज्यादा एलिजिबल होंगे आपके लिए. आप कट ऑफ मीट ही नहीं कर पाओगे कभी भी, इसलिए लोग बोलते हैं कि पीएचडी कर लो. प्राइवेट कॉलेजेस अगेन सबका अलग अलग होता है, ठीक है. कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो बिना नेट के भी ले लेते हैं, बट दे विल पे यू वेरी लेस सैलरी, क्योंकि आपके पास नेट ही नहीं है, ठीक है. नेट है सो थोड़ा सा आपको 5-10 हजार और एक्स्ट्रा दे देंगे. इफ यू हैव पीएचडी देन मे बी 10-15,000 मोर, एक्सपीरियंस के हिसाब से और दे देंगे. सो हर प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग वो चीज होता है. सो पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन ऑल्सो डू इट लेटर ऑन आफ्टर यू हैव बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. Hi, Dee. Hi. I also had Hi. a question from you. So a common concept like I see most of the students have जिनको आगे professor बनना होता है. They think कि you know what, like if I don't get into corporate, if I don't clear my entrances, then that's something I'll keep for my backup. कि okay, it's a light job and it's good paying. But what I hear from most professors, like whom I'm close to, they complain on the other hand that it's no longer a light job. That rather you have to do a lot more stuff than a corporate job also. So like, could you like shed some light on that? Okay, so see, the scenario again is different for a private college and a government college. Now, government college में क्या होता है, you do not have 9 to 5 का cycle, ठीक है. जब आपका lecture है, ठीक है, अगर एक दिन में 3 lectures हैं, आप lecture से पहले जाओ, lectures लो, lectures खत्म करके अपने घर आ जाओ, ठीक है. And the salary is even more government के जॉब में, लेकिन प्राइवेट में कम है, ठीक है. प्राइवेट में क्या होता है, you have a 9 to 5 जॉब, so वो कॉर्पोरेट की तरह ही है. उसमें आपके लेकिन वर्किंग आवर्स असाइंड होते हैं. सो सपोज 16 आवर्स पर वीक होता है, ठीक है, और वहां पे 6 डेज वर्किंग है. सो आप हर दिन जाओगे 9 to 5, ठीक है, लेक्चर्स लेकिन एक दिन में 3 घंटे के. बाकी जो आपका टाइम है वो आपको कॉलेज प्रीमाइसेस में ही रहना है, ठीक है. उनका पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा होगा, और उसके अलावा में जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है वो थोड़ा वेस्टेज हो जाता है, ठीक है. बिकॉज व्हाट डू यू डू आफ्टर यू डू नॉट हैव अ लेक्चर, यू कैन नॉट ऑल्सो जस्ट सिट एंड स्टडी फॉर योर सेल्फ. बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी बैठे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं या कुछ, तो वो आप टाइम बाउंड हो जाते हो, ठीक है. इसलिए लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है, कॉर्पोरेट की तरह ही है. गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम है, बिकॉज अगेन आप बस लेक्चर्स के लिए जा रहे हो, उसके बाद आ जा रहे हो, सो थोड़ा रिलैक्स्ड है, ठीक है. और पे भी गवर्नमेंट में ज्यादा है, अलाउंसेस वगैरह ज्यादा हैं, छुट्टियां ज्यादा हैं, सो वो चीज है. डिपेंड करता है आप कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट की तरह प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, और गवर्नमेंट तो अगेन गवर्नमेंट जॉब से बेटर तो आई थिंक है नहीं, ऐसे कंपैरिजन करोगे आप किसी प्राइवेट का तो. Thank you, Dee. हाँ जी. All right, getting the rhythm back.
So, given that many students enter corporate jobs not out of passion but sometimes as a career necessity, so how can one find a field within corporate finance or business that does align with their strengths and weaknesses? So, I mean, yeah, I do have a lot of friends who have entered into the corporate world because they had a family to support. Although they did want to study, so they are doing their masters via an online mode. Okay. Now, a job I think that they could probably take is something that provides them a work from home option. And now I think LinkedIn, I don't know, I just tell everybody to get on LinkedIn because you get a lot of opportunities from there. आप अपना एक network build कर रहे होते हो ना, so this job also I connected with people via LinkedIn only. और मेरे पास बाकी भी कॉर्पोरेट के भी जो ऑप्शंस आते हैं वो लिंक्डइन पे आ जाते हैं. एवरीबडी यू नो डीएम्स इफ दे हैव अ प्रोफाइल ओपन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो लिंक्डइन के थ्रू आई थिंक अगर आप थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लेते हो अपना लिंक्डइन, थोड़ा पोस्ट करते हो, लोगों से एंगेज करते हो, नेटवर्क बेटर करोगे, वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है. देन वर्क फ्रॉम होम आजकल हर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सो वो आप एज एन ऑप्शन रख सकते हो ताकि आपके पास में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो और आप अगर आगे भी कुछ करना चाह रहे हो, कुछ कोर्स करना चाह रहे हो या फिर पढ़ाई ही आगे करना चाह रहे हो, सो वो कर पाओ. सो ऐसे ऑप्शंस आई थिंक आई वुड सजेस्ट. Already one. Yeah, go ahead. Hello, ma'am. Hi. Hi Avishi. Hi, Hi. this is Amishi. So, just wanted to ask Kufipe that job hunting right now is like there's a saturation now here. Even through LinkedIn, there is a saturation job application. And if we talk about for commerce, Big Four, Big Three are some prominent companies where any student would want to go into. तो ऐसी जगहों पे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल होता है यूजुअली. लाइक फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स व्हाट दे डू इज वो बेसिकली हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. पे दे ट्राई टू गेट मोर ऑफ वर्क फ्रॉम अस. इवन समटाइम्स लाइक इंटर्नशिप्स अनपेड होती हैं यूजुअली. So in these kind of situations, what should one go for? Either a big firm or start small. बहुत सारे ऐसे कुछ छोटे फाइनेंस या फिर वीसी कंपनीज एक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं. तो इन इट्स लाइक एन अंडरग्रेड शुड गो फॉर अ बिग फर्म फॉर द नेम ऑफ इट, or shall just go for some small company and try to get that exposure or experience? Yeah, so I do get it. I mean, I do have students who have done BBA and they are working in a Big Four, Deloitte. I don't know if I should have named it, and the package is 3.5 LPA. He is working in Hyderabad office, right? So वहाँ living expenses ज़्यादा हैं और 3.5 लाख आपको साल का मिल रहा है. So obviously exploitation है और working hours भी उतनी है, work from home नहीं है, work from office है. और अगर वर्क फ्रॉम होम भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो वहीं के लोकेशन पे हो. आप हैदराबाद में ही होने चाहिए. वो यू कैन नॉट वर्क फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशन विच इज अवे फ्रॉम द ऑफिस प्रीमाइसेस, राइट? सो ये सब है. बट ऐसे कंपनीज में काम करने से क्या है ना कि आपके पास में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है. वहां पे आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम करने को बोलते हैं. तो आप अगर एक साल भी ऐसे कंपनी में काम कर लेते हो जहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल गया है, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का नॉलेज हो गया है, तो आप कहीं भी जाओगे वहां पे आपको बहुत अच्छा हाइक मिलने वाला है बिकॉज यू ऑलरेडी नो द स्किल्स, यू हैव द स्किल्स, राइट? तो वो चीज मैं सजेस्ट करूंगी. बट अगर बिग फोर नहीं भी है तो भी चलेगा. आप किसी भी एक अपकमिंग फर्म में अप्लाई कर सकते हो, फाइनेंस का हो या कोई भी हो. जो भी स्मॉल स्टार्टअप्स भी हैं वहां पे भी काम करोगे तो वहां पे भी क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं काम करने के लिए. वहां पे सारे के सारे रोल्स ओपन होते हैं, ऐसा फिक्स्ड रोल होता नहीं है किसी का भी. सो आप वो चीज कर सकते हो. Yeah, sorry, I just had my family come here. Yeah, so आप वो कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे रोल्स आप वहाँ पे कर पाओगे तो आपके पास में आगे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का ऑप्शन होता है बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी नॉलेज इनहेंस कर सकते हो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर एक छोटे उसके अंदर काम करके. सो दोनों के दोनों ऑप्शंस ही अवेलेबल है. एक बड़ा ब्रांड होता है उसका एडवांटेज ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा होता है
ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में अगर लिखा है ना कोई बिग 4 का नाम, सो एनीवेज आपको शॉर्टलिस्ट कहीं और से, किसी और फॉर्म में से भी ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं. सो बिग ब्रांड्स का आपके सीवी के ऊपर में जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होता है. सो अगर वो आप ला सकते हो ब्रांड का नाम, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट. Okay, I got it. How to Yeah. do that? How to get into a big 4? Yeah. Probably reach out to the right people, I would say, because रेफरल्स का बहुत ज्यादा रोल है एंड नेटवर्किंग से बहुत ज्यादा. ऑनेस्टली मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लिंक्डइन के डीएम्स के अंदर में आपके पास में लोग पोजीशंस के लिए भेज देंगे, ठीक है, अगर आप उनसे कनेक्टेड हो. ठीक है, सो रेफरल्स मांगो बहुत सारे लोगों से जो भी डेलॉइट में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे कनेक्ट करो, देखो अगर प्रोफाइल ओपन है उनको बोल दो कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन ओपन है, उसका जॉब कोड भेज दो उनको एंड देन दे विल रेफर यू. या फिर डायरेक्टली भी वो अपने एचआर को आपका सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करेंगे. सो रीच आउट टू पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. या All right. The one cross question I had while listening to you, when you said that you suggest everyone to be there on LinkedIn, students like us who are trying to build their LinkedIn, so we get in a very dilemma that what should we actually post about, because you had one purpose, you had one point of actually telling students. So what would you guide students like us at this position? How should we So, start? yeah, so I think everybody can just begin by posting their views or opinions on certain things, right? कुछ ना कुछ होते रहता है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें जो आपको इम्पैक्ट कर रही है. देयर इज ऑलवेज अ न्यूज विच इज कमिंग अराउंड, सो आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद में अपना अचीवमेंट्स वगैरह जो शेयर कर रहे हो उनको एज ए स्टोरी फॉर्म में शेयर करो, सो दैट पीपल रीड इट, एंगेज विद इट और उनको थोड़ा सा कनेक्टिविटी फील हो. जस्ट डोंट राइट प्लेनली कि आप ये आपने सर्टिफिकेशन ले लिया है या फिर आप यहाँ काम कर रहे हो. एड समथिंग मोर मीनिंगफुल टू इट. ठीक है, वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप. दूसरा है कि एंगेजमेंट्स बहुत मैटर करते हैं. आप किसी की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो ना, उससे भी कनेक्शंस आते हैं. आप मीनिंगफुल कमेंट डालो किसी के पोस्ट में जो एक बड़ा क्रिएटर है, अच्छा क्रिएटर है, सो वो आपके प्रोफाइल पे भी रिवर्ट बैक करते हैं. सो ये भी आप कर सकते हो. अनदर थिंग दैट यू कुड डू इज प्रॉब्ली आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो या फिर आपको जहाँ पे भी जाना है, सपोज आपको मार्केटिंग में जाना है, तो आप ब्रांड्स को देखो कौन क्या क्या चीजें लॉन्च कर रहा है, उनसे रिलेटेड आप पोस्ट डाल सकते हो. अगर आप फाइनेंस में हो तो फिर आप बजटिंग से रिलेटेड कुछ डाल दो, टैक्सेशन का कुछ डाल दो, या फाइनेंस की जो न्यूज आती है स्टॉक मार्केट का डाल दो. ठीक है, एचआर में जाना है तो यू पोस्ट एम्प्लॉयज का जो डिलेमा रहता है या फिर एचआर क्या करते हैं उससे रिलेटेड चीजें. सो आपको जहाँ पे भी जाना है उससे रिलेटेड आप चीजें डाल सकते हो. ये दूसरा ऑप्शन है. और रीपोस्टिंग भी आप कर सकते हो इनिशियली, जस्ट सो यू हैव समथिंग ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, वो थोड़ा रीपोस्ट करना विद योर ओन ओपिनियन, ऑब्वियसली वो आप कर सकते हो. ठीक है, सो बिगिनिंग में आई थिंक ये चीजें आप करोगे थोड़े टाइम के लिए, फिर यू गेट ए हैंग ऑफ इट, आपको क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो आप कर पाओगे इजीली. All right, Reem, thank you so much. So, next question is, what are some common mistakes that you see in college students that they make while planning out their careers, and how can we avoid it? आई थिंक पीपल हेजिटेट टू मच टू ट्राई थिंग्स. जैसे मैंने भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स पे नहीं अप्लाई किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, क्वालिफिकेशन वाले सीए कर रहे हैं, उनको उनका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा. सो आई थिंक हम जो सेल्फ डिप्रिशिएटिंग करते हैं ना, वो आई थिंक नहीं करना चाहिए. दूसरा यार, वो जो कॉलेज के रिजेक्शंस होते हैं ना, आप जब जॉब में जाओगे उससे कहीं ज्यादा रिजेक्शंस होंगे. ठीक है, और बहुत ज्यादा बेइज्जती वाले रिजेक्शंस भी होंगे. सो कॉलेज वाले रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए, वो ले लो, कोई बात नहीं. 10 जगह अप्लाई करे, 10 जगह नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है. पर अगर उस 10 में से एक जगह भी हो गया ना, तो वो आपको बाकी सबसे आगे ले आएगा. सो वो रिस्क ले लो जितना ले सकते हो. ठीक है, और ट्राई करो जितनी चीजें करनी है. So I had a small question, Dee. So हाँ जी, earlier you had mentioned कि like a lot of students, they have different paths planned out. Some have decided early on only कि they will join corporate. There are some thinking, like I would prefer to rather like do UGC NET or masters or something like that. So do you think like for students who right now think at least that they want to further get into academia and something,
should they like avoid internships? Because I see that happening a lot with my friends. Like the ones who think that they want to do PhDs, they're just like, okay, I won't waste my time on a 3 month internship. Rather, I will just focus on this and do research projects. Okay. So see, research project is also like an internship, right? So वो भी एक आप because you're getting into research, तो research से related आप internship कर सकते हो. But ऐसा नहीं है कि PhD करना तो आप research का या कोई और internship नहीं करोगे, because PhD का क्या मतलब होता है, आप एक चीज के अंदर स्पेशलाइज करने वाले हो. सो आपको अगर उस चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज काम हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, वेयर इज द रिसर्च गैप दैट यू विल ट्राई टू फिट इन, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा इंटर्नशिप के बिना. तो इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है. आपका जो पीएचडी का इंटरव्यू होगा तो वो आपसे पूछेंगे ना कि आपने इस फील्ड में क्या काम किया है जो आप इतना एक्साइटेड हो गए हो काम करने के लिए, राइट? सो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस सबको ही लेना चाहिए, और पीएचडी में नहीं होता है तो फिर क्या, वो भी PhD, getting into a PhD is very difficult, right? You have interviews, you present your research proposal, उसके बाद में टेस्ट भी होते हैं, फिर आपके थीसिस वगैरह में भी आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपके पास में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है क्योंकि आपने इंटर्नशिप किया हुआ है. सो वो चीज करना चाहिए. इंटर्नशिप ऐसा नहीं है कि, और सीवी को अपलिफ्ट ही करता है. एनीवेज व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, जितना वेराइटी होगा आपके सीवी में वो आपको हेल्प करता है, बिकॉज ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं देंगे वो आपको कभी भी पढ़ाने के लिए. आपको हर सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना. अब मार्केटिंग वाला है, उसको बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती है. ऐसा मार्केटिंग मेन कोई सब्जेक्ट नहीं है. प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ठीक है, हो गया, अगले सेमेस्टर में कुछ और आ सकता है, एडवर्टाइजिंग आ गया या कुछ और आ गया, सो वो सब पढ़ाने को मिलेगा. सबको नॉलेज होना चाहिए, और ये सब नॉलेज इंटर्नशिप्स के थ्रू ही मिलती है. सो इंटर्नशिप्स आई वुड से गो फॉर इट इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू एकेडमिया. Got it, Dee. या Alright. So the next question is the roles like business analyst, data analyst are quite technical in itself. So do you think that these roles are good option for students pursuing commerce? And what skills do you think that these roles require? सो आई थिंक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिस्ट के ऑप्शंस आते हैं बहुत ज़्यादा ना, आप जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इन कॉमर्स, यू आर एनालाइजिंग वेरियस थिंग्स. अगर आप फाइनेंस में हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज कर रहे हो. मार्केटिंग में हो तो यू आर एनालाइजिंग द मार्केट एंड द मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑफ वेरियस कंपनीज. सो एनालिसिस तो आप कर ही रहे हो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. सो बिजनेस एनालिस्ट का रोल आपके लिए सूटेबल है. व्हाट वुड यू डू इन अ बिजनेस एनालिस्ट रोल इज, जो भी जहां पे भी आप काम कर रहे हो उसको एनालाइज करना है, उसके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना हो सकता है, उसके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना हो सकता है. सो वो परफेक्ट अलाइनमेंट में है आपका बिजनेस एनालिस्ट का रोल. टेक्निकल स्किल्स एज सच आपको ऑलरेडी हो, आपके पास में होंगे इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर आप जो पोर्टफोलियो लेकर जा रहे हो, अपना सीवी लेकर जा रहे हो, उसके अंदर ऑलरेडी लिखा होगा आपका इंक्लिनेशन. सो आपको रिस्क एनालिसिस करना है या बिजनेस एनालिसिस करना है, वो डिपेंड करेगा आप किस एरिया में जाना चाह रहे हो. सो बिजनेस एनालिस्ट का आई थिंक वो फोरमोस्ट पोजीशन आपको ऑफर होता है एक कॉर्पोरेट में. Alright, Dee. Thank you. Another question would be like, how can students choose the right internships, and what do recruiters look for in interns and fresh graduates? Because would a person would choose like a student who has like developed their skills, or another one who may have interned in like 10 organizations but don't have much skills to offer? So initially, I think students do not have a lot of choice in their hand, right? आपके पास में experience तो है नहीं, so you go with a blank CV. You just have your qualifications listed. Initially, you could just apply to any company that you get into, and then after one internship, you have some upper hand where you can select which internship you want. आप अपना CV portfolio भेज सकते हो, सर मैंने इसमें काम किया है, and then I'm looking for more role in this particular field. So first वाला तो आपको जहाँ पे भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा. मार्केटिंग का होता है, सॉरी आई जस्ट हैव टू हरी अप. मार्केटिंग का है सपोज, सो उसके अंदर क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको पोस्टर सर्कुलेट करने के लिए बोलेंगे. सो वो चीज आप अवॉइड करके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लो जिससे आपको नॉलेज भी मिल रही है. ठीक है, ये आप पोस्टर्स वगैरह तो सोसाइटी के इंटर्नशिप्स में भी शेयर कर रहे हो ना. सो अगर एक ऐसा इंटर्नशिप मिल रहा है
कि जहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिल ही नहीं रहा है, आपको कुछ हेल्प ही नहीं हो रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस ही नहीं हो रही है, वो इंटर्नशिप्स को अवॉइड करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ सर्टिफिकेट, बिकॉज हाउ विल यू जस्टिफाई इट लेटर ऑन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब? होगा ही नहीं आपके पास में कुछ बताने के लिए, व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली इन दैट जॉब। सो ऐसे इंटर्नशिप ढूंढो जहाँ पे थोड़ा सा ही काम हो लेकिन आपको सीखने को मिल रहा हो कुछ जो कि आप बाद में जस्टिफाई भी कर पाओ। सो इनिशियली ले लो छोटा सा काम एंड देन उसके ऊपर बिल्ड ऑन इट एंड देन लुक फॉर मेजर रोल्स जो आपको आगे जाके जिसके अंदर में आपको जॉब चाहिए। ठीक है, Ready? So, as I see that you are quite running late, so we'll just have 1-2 questions more and a quick question and answer session. That would be fine from your end. Yeah, cool. Just like another 5 minutes because I think they're waiting for me. Yes, just like then we should go for the one last question. Yeah, And if Q&A, anyone has any questions, so then. Okay, so lastly, how important you think certifications are, and which one would help commerce students more? सर्टिफिकेशन यार, कॉर्पोरेट में जाना है या फिर इवन कहीं और आपको खुद का ही कुछ करना है ना, सो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है आपके पास सर्टिफिकेशन होता है तो। ठीक है, एनीबडी हु लाइक गोज थ्रू योर सीवी एंड सीज दैट यू कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, उसको पता है कि आप मेहनत करने वाले हो, दैट यू नो यू हैव इन्वेस्टेड टाइम इन दिस एंड यू आर एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। सो ये सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉर्पोरेट में दे गेट इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीबडी हैज द बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी, यू नो देव ऑलरेडी मेट इट। आपके पास में उससे ज्यादा क्या है जो कि आपको डिस्टिंग्विश करेगा बाकी आपके एम्प्लॉय कलीग से। सो ये सर्टिफिकेशंस वहां पे हेल्प करते हैं कि आपके पास में एक और एडिशनल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है जो कि आप कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो ये सर्टिफिकेशंस वहां पे काम आ रहे हैं। और सीए मतलब जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए इट डिपेंड्स, आपको सीए लेना है, सीए थोड़ा लॉन्ग टर्म 5 साल आर्टिकलशिप वो सब है, सीएफ पे थोड़ा सा इजी अवेल ऑप्शन होता है। ठीक है, सीए में कर सकते हो, यूएस में काम करना है तो ये सब सीपीए है। तो वो डिपेंड करता है आपको किस मार्केट में काम करना है और आप कितना कमिटमेंट दे सकते हो सर्टिफिकेशन को। या Just one question from my side, Dee, in case you're not running late. Cool. Like on the topic of like certifications, so we have this like new culture in DU where every student, like when they come in first year, they immediately go on Udemy, they go on Coursera, they do like 20 courses like from it, and then they're like, okay, मैंने 15 courses किए John Hopkins University, Google, now I'm a data analyst. Is it actually worth it? Or like should we rather like spend our time somewhere else? Yeah, I would say spend your time somewhere else because these courses na, even I did one course from Coursera, but I do not mention it anywhere because it was a theoretical course, right? I did not get any practical knowledge. How am I going to justify it? मैंने सिर्फ उसका assignment complete कर दिया does not mean I am, you know, qualified enough for that position. वो तो मेरे को knowledge आया ही नहीं है, बस असाइनमेंट चैट जीपीटी किया, खत्म कर दिया है। सो कुछ भी करो, छोटा सा चीज करो, लेकिन ऐसा करो जो आप जस्टिफाई कर पाओ अपने इंटरव्यू में। कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स यू विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है उससे। चैट जीपीटी से आंसर्स लिखना इज नॉट लाइक व्हाट आई वुड सजेस्ट। कुछ भी ले लो, इंटर्नशिप ले लो छोटी सी जिसके अंदर सीख रहे हो। ठीक है, सोसाइटी के अंदर एनरोल कर लो आई वुड से, ये कोर्सेज के अलावा। तो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे ना, इतने सारे रोल्स करोगे, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। जो पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनीवेज वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके सीवी के अंदर रादर देन दीज कोर्सेज। Okay, Dee, thanks a lot. Yeah, no problem. Anybody else? Yeah, if anyone has any questions, they can ask. Alright, okay. Go ahead. Yes, sir. Yeah. So I just wanted to ask, what is the probability of like being successful if we shift our career lines from commerce, not only from like undergrad level but also from postgrad? जैसे if you're in undergrad you'll go for corporate maybe, or you'll go for some higher studies. But if you shift your lines, such as data analysis is very similar, like it comes in similar lines, but it is a different thing altogether. I get it. Yeah. So is it okay if I just shift to that line? Would it help me, or is it like I should stick to what my expertise lies into?
See, it is completely okay to switch because I had my friends who had shifted their courses from UG. Just a second. Uh, जो लोग यूजी के टाइम पे एसआरसीसी से शिफ्ट कर गए और उन्होंने फिर हिस्ट्री चूज कर लिया, बाद में भी आप कर सकते हो. वेरी सॉरी, आई जस्ट हैव टू गेट आउट. एक सेकेंड. हाँ, सो आप स्विच कर सकते हो कभी भी, ठीक है. डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो. अगर आपका अलाइनमेंट है कि आपको डेटा एनालिस्ट ही बनना है, तो आप उसी लाइन में चले जाओ. बट ऐसा कंफ्यूजन की वजह से जा रहे हो, सो आई वुड से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो और एक्सप्लोर कर लो आपको वो करना है. बिकॉज आप अगर वापस आओगे तो फिर आप अगेन सब चीजें जस्टिफिकेशन के ऊपर होती है. ट्राई करना है तो कुछ छोटा ऑप्शन ट्राई करो, एक्सट्रीम स्टेप्स लेके स्विच मत करो बिल्कुल ही, ठीक है. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. पर कुछ भी हार्म नहीं है, आप स्विच कर सकते हो कभी भी. अपना करियर स्विच करना है या फिर कोर्स स्विच करना है. आई हैव आई एम मीटिंग पीपल हु आर एनरोल्ड इन अ कोर्स अभी यूजी के टाइम पे, एंड दे विल बी टेकिंग अ ड्रॉप अभी बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो, ठीक है. और कहीं और उनको अप्लाई करना है या कुछ और इंटरेस्ट करना है. सो वो टोटली इट इज योर कॉलिंग. आपको जो चीज अच्छी लग रही है ना वो आप कर सकते हो. Okay, ma'am, got it. Thank you. हाँ जी. Alright, I think we should go to the another session. Thank you, Dee, for I'm so coming. sorry. I just had to. No, it's such an honor for Study Sage to host you here. I think Krishna We have a already great has Thank you. have a Thank great you trip. so much. Yeah, thank you. I'll pray for you guys too. Thank you, Yeah, Dee. okay. I wish to have more such Yeah, collaboration. thank you. Thank you Yes, I so will much. maybe connect later on when I am at my place only. Sure, you'd Sure. love to. Yeah. Okay. Take Thank care, you. guys. Bye bye. Thank you for joining. Bye bye, Dee.